A very wonderful good morning to all of you students. This is Meenu Chug, your English teacher, and as you all know that before some time we have completed our second chapter of book Honeysuckle. So here we are about to start our third chapter of the same book. The name of the chapter is Taros Reward. Now you will say students, ma'am, what is this tarot? Basically students, tarot is the name of a person, name of a boy. And what is reward? Whenever we do something good, that time what we get? We get reward. हमें क्या मिलता है? इनाम मिलता है. So the chapter is totally based on Taro's reward. कि what type of reward did get Tarot? Clear? So let me tell you a bit summary of the same chapter. Students, once there was a boy whose name was Taro. He was very hardworking, but he was a poor person. Once his father demanded a drink from him. The name of the drink was sake. What was the name of the drink? S-A-K-E, sake. It is the Japanese name. Now what is sake? It is a heart-warming drink. Clear? Now did Taro got able to bring that drink for his father or not? Let's read out through the chapter. So students, before you read, so I would ask you to open page number 29 of chapter number 3 from book Honeysuckle. Clear? Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. Means this story is the clearance of about a thoughtful and a loving son. Means what type of son was Taro? Loving, caring and thoughtful. He works hard to fulfill his parents' wishes. Means he had always worked hard to fulfill his parents' demanded. Clear? इसने हमेशा work hard किया किस लिए? अपने parents की wishes को fulfill करने के लिए, पूरा करने के लिए. And get some unexpected help. और उसको क्या मिलता है? अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है. ऐसे हेल्प जिसका उसने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं किए होंगे. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर थॉरोली. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. A young woodcutter, मतलब जो अब इससे पता चलता है कि जो woodcutter है वो बहुत ज़्यादा एज का नहीं था. He was young. Named Taro. क्या नाम था उसका? Taro. Lived with his mother. किसके साथ रहता था? Mother and father. अपने father और mother के साथ रहता था. On a lonely hillside. Hillside मतलब पहाड़ियों की तरफ. वो अपने parents के साथ रहता था. All day long he chopped wood in the forest. All day long. पूरा दिन what he used to do? He used to chop woods. पूरा दिन क्या करता था बेटा? वो लकड़ियाँ काटता था. Though he worked very hard. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था वो. Though means जबकि. He worked very hard. वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था. He earned very little money. बहुत ज़्यादा कम पैसे अर्न करता था. Now open next page. Page number 30. This made him sad. अब obvious सी बात है बेटा. Suppose you do hard work but you get very less marks. So what will be there? You will be sad ना. Same thing was there with Taro. जो Taro था, he was very hard working. He used to do very hard work, but he used to earn very little money, very less money, which made him sad. जिसकी वजह से वो क्या हो गया बेटा? उदास हो गया. For he was a thoughtful son. Thoughtful मतलब सोचने वाला. ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो दूसरे के बारे में सोचता है. That is the meaning of thoughtful. He was a thoughtful son. सोचने वाला बेटा था वो. And wanted to give his old parents everything they needed. And wanted to give, और देना चाहता था his old parents, अपने बूढ़े माता पिता को everything they needed. वो हर चीज़ जिसकी उन्हें नीड थी. One evening, एक शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, कि जो टैरो था और जो उसके पेरेंट्स थे वो कहाँ बैठे हुए थे? वो अपने हट की कॉर्नर में बैठे हुए थे. स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेज़ हवा चलने लगी. स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज़, विंड मतलब हवा, बिगेन टू ब्लो, ब्लो मतलब बहने लगी. बहुत तेज़ हवा बहने लग गई. इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt cold. इट whistled मतलब वो सीटी बजाती हुई हवा जो है कहाँ से निकली? थ्रू द क्रैक्स. क्रैक्स मतलब दरारें. किसकी दरारें? हट की दरारें. अब जो हट थी बेसिकली बेटा देवर नॉट रिच है ना, तो उनकी हट कैसी थी? उनकी हट जो थी उसमें दरारें थी, वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी थी. जो ठंडी हवा बही तो वो हट के अंदर से गई. अब हट में कौन कौन बैठा था? टैरो और उसके पेरेंट्स. तो उसके पेरेंट्स को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगी. एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगी. सडनली टैरोस फादर सैड. सडनली अचानक. टैरोस फादर सैड. टैरो के फादर ने कहा आई विश कि काश. आई हैड अ कप ऑफ सैके. काश कि मैं एक कप सैके. जैसे हमारे यहाँ बेटा जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं. और जापानीज ड्रिंक है ये सैके. ठीक है.
तो ये जो सेके है उसके फादर की विश थी कि वो सेके पिए जिससे कि उनको गर्मी महसूस हो इतनी ज़्यादा ठंड में, ठीक है। इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्मी देगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े दिल को थोड़ा सा अच्छा फील करवाएगा। इट्स नॉट SAKE सेक, इट्स सैके, इट्स अ जापानीज हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्लियर। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, अब इस बात ने टैरो को और ज़्यादा उदास कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सैके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी सैके वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अब एक्सपेंसिव क्या होता है बेटा, कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, और मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। टैरो वॉज थिंकिंग सो, टैरो ऐसा सोच रहा था। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सैके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, हाउ डू आई, किस तरह से, गेट, पा सकता हूँ, हाउ डू आई गेट, मैं कैसे पा सकता हूँ, अ लिटिल सैके, थोड़ा सा सैके, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने निश्चय किया कि वो पहले से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, जो टैरो था वो अपने बेड से और जल्दी उठ गया, ठीक है। यूजुअल देन एवर, मतलब जैसे कि पहले वो उठता था उससे और जल्दी उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ अपना रास्ता बनाया। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, उसने चॉप किया और कट किया, मतलब वो जो लकड़ी थी वो उसने और ज़्यादा अमाउंट में काटी, और ज़्यादा मात्रा में काटी। एज द सन क्लाइम, और तब तक काटता रहा जब तक सूरज चढ़ नहीं गया, मतलब कि जब तक दोपहर नहीं हो गई वो दोपहर तक लकड़ियाँ काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, एंड सून, और जल्दी ही वॉज सो वार्म, वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट रिमूव करनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो माउथ है वो ड्राई हो चुका था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो फेस है वो स्वेट से भर चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो उतने ही गर्म महसूस कर पाते जितना मैं कर पा रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ऐसा कहकर उसने और ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ चॉप करना स्टार्ट कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न टू बाय द सैके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ही मस्ट बाय, उसे ज़रूर खरीदनी चाहिए द सैके, दैट जैपनीज ड्रिंक सैके, टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, उस वार्म करने के लिए उस बूढ़े आदमी की बोन्स को, यानी कि अगर वो जो उसके ओल्ड फादर वो सैके ड्रिंक पीते तो उनके जो बॉडी है वो उनको अच्छा फील करते, वो अच्छा फील होता उन्हें, और वो फील अच्छा करते और गर्म महसूस होता, उनकी जो बॉडी है, जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो वार्म महसूस करते। एंड विद दैट, उस ऐसा सोचकर ही स्टार्टेड कटिंग एक्स्ट्रा वुड्स, he started doing more hard work. Then suddenly Taro stopped chopping. Then, तब suddenly, अचानक Taro stopped chopping. Taro ने चॉप करना, चॉप क्या होता है बेटा, कटिंग, ठीक है, काटना, लकड़ियाँ काटना इज कॉल्ड चॉप्ड, वेजिटेबल्स काटना इज कॉल्ड कट, क्लियर। उसने चॉप करना, वुड को बंद कर दिया। What was that sound he heard? एक साउंड उसको सुनाई दी। What was that sound? वो साउंड क्या है? He heard, जो उसने सुनी। Could it possibly be rushing water? Could it be, क्या ये हो सकता है? Could it possibly be, क्या शायद ये हो सकता है rushing water? Rushing water means बहता हुआ पानी। Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Taro could not remember. अब Taro को ऐसा कुछ तो याद था नहीं, ever seeing कि उसने कभी देखा हो, और hearing या सुना हो, और rushing stream कोई बहती हुई धारा, rushing मतलब बहती हुई, stream मतलब नदी की धारा। In that part of the forest, फॉरेस्ट के उस पार्ट में, जिस पार्ट में वो वुड्स चॉप कर रहा था। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो एक्स कुल्हाड़ी थी ड्रॉप्ड, गिर गई, आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों में से। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ही रैन, वो दौड़ा, इन द डायरेक्शन में, ऑफ द साउंड, उस साउंड की डायरेक्शन में वो दौड़ कर गया। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो ने देखा एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, लिटिल, छोटा सा वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब झरना जहाँ से पानी बहता है, हिडन, छिपा हुआ था, बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे। नीलिंग मतलब बेटा घुटनों पर बैठना, ठीक है, नीलिंग, घुटनों पर झुकते हुए, एट अ प्लेस, उस प्लेस पर, वेयर द वाटर फ्लोड
क्वाइटली, जहाँ पर पानी बहुत शांति से बह रहा था, ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स, ही कप्ड मतलब अपने हैंड्स को एज कप यूज करना, ठीक है, अपने जो हाथ थे उसने इकट्ठे किए एंड उसने क्या किया, वो थोड़ा सा पानी ना पीकर देखा एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वो जो पानी था वो अपने लिप्स तक लेकर गया और उसको टेस्ट किया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट सैके, क्या और या फिर ये सैके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उस पानी को टेस्ट किया, या फिर जिसे कह सकते हैं कि आप जो उसको सैके फील हो रहा था उसने उसको टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सैके, और जितनी बार भी उसने उस सैके को टेस्ट किया, उस पानी को टेस्ट किया, वो क्या टेस्ट आया, उसका सैके का टेस्ट आया। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, पिक्चर मतलब जो भी उसके हाथ में मटका था, गड़ा था, उसने जल्दी से उस पिक्चर को फिल कर लिया, हैड विद हिम, जो उसके पास था, एंड हरिड होम, और हरिड मतलब जल्दी से, तेजी से, और बहुत तेजी से घर भागता हुआ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सैके, जो ओल्ड मैन था उसने वो सैके पिया, और ओल्ड मैन कौन था बेटा, उनके फादर, जो ओल्ड मैन थे उन्होंने वो सैके पिया। नेक्स्ट पेज ओपन बेटा। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. After only, सिर्फ एक लिक्विड के एक सिप के बाद जो ओल्ड मैन थे, he stopped shivering, उन्होंने कांपना बंद कर दिया, and did a little dance in the middle of the floor. And what he started doing? He started dancing in the middle of the floor at the same time. वो ओल्ड मैन इतने ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने फ्लोर के मिडल में डांस करना शुरू कर दिया। That afternoon, उस दोपहर के बाद, a neighbor stood by for a visit. अब बेटा देखो कहानी में ट्विस्ट है। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है, उनके जैसे अब हमारे रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं हमसे मिलने, राइट, तो टैरो के घर पर भी क्या हुआ, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक नेबर, एक पड़ोसी था, वो घूमता हुआ जा रहा था, वो टैरो के घर पर थोड़ी देर रुक गया। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सैके, अब जो टैरो के फादर थे, पोलाइटली मतलब उन्होंने बहुत प्यार से उस लेडी को वो सैके जो था वो ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक ग्रीडीली, अब जो लेडी थी वो उसने बड़ा लालची थी, वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत लालच से उसने पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक यू बोल के वो वहाँ से चली गई। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, अब टैरो ने क्या किया, उस लेडी को उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बता दी, क्योंकि टैरो ने क्या सोचा, वो पानी है, लेकिन टैरो के हार्डवर्क के बाद उसको वहाँ पर क्या मिला, सैके, तो वो स्टोरी उसने बता दी उसको। अब यूजुअली बेटा क्या होता है, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तो वो बात क्या होती है, पूरी की पूरे गाँव में, पूरे के पूरे पड़ोस में, एरिए में फैल जाती है। द सेम थिंग वॉज देयर, सेम यहाँ पर हुआ। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी, थैंकिंग दैम, उनको धन्यवाद करते हुए, फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए, शी लेफ्ट इन हरी, डिलीशियस मतलब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, टेस्टी, वो जल्दी से वहाँ से चली गई। बाय नाइट फॉल, रात तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, बताया ना मैंने अभी आपको क्या हुआ था कि उसने पूरी की पूरी स्टोरी जो क्या है स्प्रेड कर दी, स्प्रेड मतलब फैलाना, इन द होल विलेज, पूरे के पूरे विलेज में उसने वो स्टोरी स्प्रेड कर दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब भीड़, क्राउड। दैट इवनिंग, उस इवनिंग पे देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, और विजिटर्स की, टू द वुड कटर्स हाउस, उस वुड कटर्स मतलब लकड़ी काटने वाले के घर के बाहर। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सैके, और एक एक सिप सबने सैके का लिया। इन द लेस देन 1 hour द पिक्चर वॉज एम्प्टी, अब 1 घंटे से कम समय में जो पिक्चर था, जो टैरो ने फिल किया था उस वाटरफॉल से, वो क्या हुआ, वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, टैरो जो था वो अब और ज़्यादा जल्दी उठ कर गया हार्ड वर्क करने के लिए। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, वो अपना खुद का और भी ज़्यादा बड़ा पिक्चर लेकर गया जो कि उसका खुद का था। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट द वाटरफॉल, फॉर ही इंटेंटेड, क्या इंटेंशन थी उसकी, इंटेंटेड मतलब प्लान करना किसी भी चीज़ को, ही प्लान, क्या प्लान किया उसने, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, टू गो टू द वाटरफॉल, कि वो वाटरफॉल के पास जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पर पहुँचता है, ही फाउंड फॉर हिज ग्रेट सरप्राइज, वो देख कर ही हैरान हो जाता है, ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे नेबर्स वहाँ पर
प्रेजेंट थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, वो पिक्चर्स ले रहे थे, जार्स ले रहे थे, बकेट्स ले रहे थे, मतलब जो भी उनके पास सामान अवेलेबल था उस सके को फिल करने के लिए वो सब लेकर आए हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सके, एनीथिंग कुछ भी मिल जाए टू होल्ड भरने के लिए द मैजिकल सके, उस मैजिकल सके को फिल करने के लिए उन्हें कुछ भी मिल जाए, दे ब्रॉट विद देम। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. Then one villager, एक villager तो जो था he knelt मतलब कि वो अपने घुटने पर बैठा and held his mouth under the waterfall to drink, और अपना जो उसने माउथ था ना, अपना उसने माउथ क्या किया, हेल्ड कर दिया, मतलब कि उस वाटरफॉल के नीचे अपना उसने माउथ लगा दिया उस पानी को या सैके को ड्रिंक करने के लिए। He drank again and again, उसने बार बार ड्रिंक किया, and then he shouted angrily, फिर वो गुस्से से चिल्लाया, वाटर पानी, nothing but water, कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, सिंपल पानी है। Others also tried, अब दूसरों ने भी कोशिश की, बाकी जो विलेजर्स आए हुए थे they also tried बेटा, but there was no sake, only cold water, but वहाँ पर सैके नहीं था, क्या था, सिर्फ cold water। We have been tricked, tricked मतलब डिसीव्ड मतलब छला जाना, मतलब किसी के साथ जब हम कोई मजाक करते हैं ना, जब कोई जॉक करते हैं तो दैट टाइम दैट पर्सन इज ट्रिक्ड। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें छला गया है, हमारे साथ मजाक किया गया है। शाउटेड द विलेजर्स मीन्स द विलेजर्स स्टार्टेड शाउटिंग, अब जो विलेजर्स थे वो शाउट करने लग गए। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, ड्रॉन मतलब डुबो देना, चलो हम उसको उस वाटरफॉल में मिलकर डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ, जो टैरो था ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत स्मार्ट था। वट ही डिड, ही स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो एक रॉक के पीछे छिप गया, स्लिप हो गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, अब उसे कहीं भी फाउंड नहीं किया जा सकता था क्योंकि टैरो जो था वो छिप गया था। मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए, देयर एंगर अपने गुस्से में, एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है बेटा, निराशा में और गुस्से में बड़बड़ाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अब विलेजर्स ने क्या किया, उस प्लेस को वन बाय वन लेफ्ट कर दिया, एक एक करके वो अपने घर चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो अपने छिपे हुए प्लेस से बाहर आया। What was it true? He wondered, क्या ये सच है? He wondered, वो हैरान हो गया। Was the sake a dream? क्या जो सैके था क्या सच में वो मेरे लिए एक ड्रीम था? Was it a dream? Once more he caught a little liquid in his hand. Once more, एक बार फिर he caught, उसने इकट्ठा किया a little liquid, थोड़ा सा लिक्विड उस वाटरफॉल में से, in his hand, अपने हैंड्स में से, and put it to his lips, और अपने लिप्स के पास लेकर गया वो टेस्ट करने के लिए। It was the same फाइन सैके, क्या था वो, फिर से वो सेम फाइन बहुत टेस्टी और बढ़िया सैके था। टू द थॉटफुल सन, उस थॉटफुल मतलब ऐसा बच्चा जो अपने, ऐसा बेटा जो सोचता है अपने पेरेंट्स के बारे में, दैट इज द मीनिंग ऑफ थॉटफुल, मतलब सोचने वाला बेटा। टू द थॉटफुल सन, उस सोचने वाले बेटे के लिए द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सैके, जो मैजिक मतलब जादुई वाटरफॉल जो था उसमें से क्या निकल रहा था, सैके निकल रहा था, बट सिर्फ टैरो के लिए, क्योंकि टैरो क्या करता था, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन बाकी सबके लिए क्या था, सिर्फ एक ठंडा पानी था, कोल्ड वाटर था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, द स्टोरी, ये जो कहानी थी टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की, रीच्ड, अब कहाँ पहुँच गई, द एम्परर ऑफ जापान, जापान के एम्परर के पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को बुलवा कर भेजा, सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजना, किसी को बुलवाना। एंड रिवॉर्डेड हिम विद हिज 20 pieces of gold for having been so good and kind, और उसने क्या किया, ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को बुलवाया, एंड और रिवॉर्डेड हिम, उसको रिवॉर्ड किया विद 20 pieces of gold, 20 pieces विद 20 pieces किसके साथ, गोल्ड के साथ, उसको रिवॉर्ड किया, सम्मानित किया। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, तो उसने उसका नाम जो है उस फाउंटेन का, जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था ना जिसमें से टैरो को सैके टेस्ट हो रहा था, जो उसने फादर को टेस्ट कराया था, उसका नाम उसने क्या रख दिया, उस किंग ने उसका नाम क्या रखा बेटा, टैरो के नाम पर रखा। ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, उस सिटी में जो सबसे सुंदर फाउंटेन था ना उसका नाम उसने
टैरो के नाम पर रख दिया। दिस यह सैड द एम्परर और राजा ने कहा वॉज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन, और ये उसने ऐसा इसलिए किया ताकि टैरो को देखकर जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो एनकरेज हों टू ऑनर रिस्पेक्ट करने के लिए, ओबे आज्ञा का पालन करने के लिए, देयर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की। तो इस कहानी से बेटा हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको उसका मिलता है, मतलब कि आपको उसको रिटर्न में मिलता है, आपको उसका फल मिलता है। लेकिन आप नहीं करते हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, है ना। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।